Hello and welcome to JEE Sutra. We have this question from JEE Advanced 2016 paper 2 and the chapter is chemical equilibrium. In this question, the reaction is given X2 decomposes to 2X and decomposition type is thermal decomposition. This decomposition takes place at 298 Kelvin and the standard gives free energy for this reaction is positive. One paragraph is given and based on this paragraph there are two questions. So at the start of reaction there is 1 mole of X2, that is when we start the reaction at T equals 0 we have 1 mole of X2, right? Then as the reaction proceeds number of moles of X formed is given by beta, ठीक है। और जब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को देयर इज नो X, ठीक है। and the beta equilibrium is the number of moles of X which is formed at the equilibrium. Reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider the gases to be have ideally R or T की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन being asked is find out the value of Kp for this reaction in terms of beta equilibrium, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन के को करने के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो रिएक्शन यहाँ पे है मैं कर रहा हूँ यहाँ पहला क्वेश्चन जो रिएक्शन गिवन है X2 decomposes to 2X and X2 यहाँ gaseous medium में reaction is carried out in homogeneous gaseous phase reaction. According to the question, when we start the reaction there is 1 mole of X2 and no X, that is at T equals 0 we are given 1 mole of X2 and there is no X. As the reaction proceeds, what we get at T equilibrium according to the question, at T equilibrium what we observe the number of moles of X formed is given by beta which becomes beta equilibrium at equilibrium condition. Okay, so when equilibrium is achieved X जो फॉर्म करेगा दिस इज बीटा इक्विलिब्रियम। अब आप यहाँ देखो इफ फॉर 2 moles of X 1 mole of X2 इज कंज्यूम्ड, 2 मोल X बनने के लिए 1 मोल X2 का कंज्यूम होगा। तो अगर मैं 1 मोल X बनाऊँ तो 1/2 मोल X2 का जाएगा, बीटा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है तो इसका बीटा/2 जाएगा, तो दैट इज T इक्विलिब्रियम पे ये होगा बीटा/2। अगर ये हम इफ वी राइट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, means moles of X2 at equilibrium and moles of X at equilibrium, that is 1 minus beta equilibrium by 2 plus beta equilibrium, right? तो यहाँ पे it will be simply 1 minus beta equilibrium upon 2 plus beta equilibrium और ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1 plus beta by 2, राइट? तो ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया। अब चूंकि Kp निकालना है, फॉर Kp वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पार्शियल प्रेशर, तो मैं पार्शियल प्रेशर निकालता हूँ। सबसे पहले अपन पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे फॉर X2 एंड फॉर X2 पार्शियल प्रेशर इज सिंपली, आपको पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर हम ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर के लिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है और ये इनके मोल्स गिवन है, तो 1 माइनस बीटा/2 अपॉन जो टोटल मोल्स है ये 1 प्लस बीटा/2 ये टोटल मोल्स है इनटू पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, तो ये आया Px2। सिमिलरली अगर अपने को निकालना है पार्शियल प्रेशर जो फॉर्म होगा, वो पार्शियल प्रेशर जो X का फॉर्म हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ X विल बी moles of B by total moles, that is 1 plus beta equilibrium upon 2 into total pressure, right? ये पार्शियल प्रेशर आया X का। अब the first question being asked is find the value of Kp. Kp will be partial pressure of X square by partial pressure of X2, that is equilibrium constant in terms of partial pressure Px का square upon you can write Px2 and अभी हमने partial pressure substitute these values here. Upon substituting what we will get beta equilibrium by 1 plus beta equilibrium by 2 इसका square into P का square upon 1 minus beta equilibrium by 2 by 1 plus beta equilibrium by 2 into P.
अब यहाँ आप देखोगे दिस पी कैंसल्स दिस पी, राइट, एंड ये जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इसका स्क्वायर है और नीचे, तो अपॉन सोल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट, बीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस बीटा बाई 2 into p by 1 minus beta by 2, and this comes in the form of a plus b into a minus b, that is a square minus b square, and what we will get, beta square into p by 1 minus beta square by 4, okay, and upon further solving this will become 4 minus beta square and 4 will go up, 4 beta square into p by 4 minus beta square, and the value of p is given in the question. Let's see, and the question, the reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar, so p is 2, substitute the value 2, upon substituting the value 2 it will become 4 beta square into 2 by 4 minus beta, that is beta is present in form of beta equilibrium, and hence Kp will become 4 into 2 8 beta equilibrium square by 4 minus beta equilibrium. So the value of Kp is 8 beta equilibrium square by 4 minus beta equilibrium. Looking upon the options, what we observe, this option B is correct, and we have one more method for the same question, and that method is very time saving. So in order to consume less time you can apply this method. इस मेथड में हम करते क्या है, x2 को हमने ब्रेक करा, 2x में गैसियस फेज रिएक्शन गिवन था, और यहाँ जो T0 की कहानी है 10, T इक्विलिब्रियम पे अभी फिलहाल मैं इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाद में वी विल रिप्लेस इट बाई बीटा इक्विलिब्रियम, एंड ये फॉर्म 1 माइनस बीटा बाई 2 बीटा ऐसा फॉर्म हो रहा था। यहाँ टोटल मोल्स जो होंगे ये होंगे 1 प्लस बीटा बाई 2, राइट। अब करते क्या है, जब हम Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kp का एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम सिंपल K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे बीटा का स्क्वायर बाई 1 माइनस बीटा, मोल के टर्म्स में आप लिख लो, जैसे मैंने लिखा बीटा स्क्वायर बाई 1 माइनस बीटा अपॉन 2, ये मैंने मोल्स के टर्म में सबसे पहले लिख लिया। अब करेंगे क्या, हम डिग्री चेक करेंगे ऊपर और नीचे। अगर आप डिग्री देखोगे तो ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 1 है। अब जहाँ पावर जितना ही कम है उतने टर्म से हम करते क्या है, यहाँ आप देखोगे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। जितने से भी ज़्यादा हो वहीं हम प्रेशर के उतने ही टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, दैट इज डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो जहाँ ज़्यादा हो उतने को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रेशर से, और डिवाइड हम कर देते हैं टोटल मोल्स से। ये है, अगर ऐसा होता है यहाँ 3 होता और यहाँ 1 होता तो मतलब 2 ज़्यादा है, तो ये पी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से होता। बात आ रही है समझ में। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 4 होता, मतलब नीचे की डिग्री ज़्यादा है, तो यहाँ नीचे हम मल्टीप्लाई करते पी स्क्वायर से और ऊपर मोल्स, टोटल मोल्स से। तो अब करते क्या है, बीटा स्क्वायर बाई 1 माइनस बीटा बाई 2, आपको पता है पी की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है 2, एंड जो टोटल मोल्स आए थे इक्विलिब्रियम पे ये आया था 1 प्लस बीटा बाई 2। अगर आप देखोगे ये फिर से सेम एक्सप्रेशन आने वाला है, 2 बीटा स्क्वायर बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4, जिसको अगर आप सोल्व करोगे तो अगेन ये 4 ऊपर जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा इक्विलिब्रियम के टर्म में। तो मुझे लगता है दिस मेथड इज डेफिनेटली टाइम सेविंग, सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इस तरीके से Kp की वैल्यू अब भी सेम आ रही है। तो ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन which is asked in this question, there are 4 different statements and you need to find out the incorrect statement. So let's check the validity of each and every statement. The first statement, is given is decrease in total pressure will result in formation of more moles of gaseous X. तो रिएक्शन ऐसा था, X2 टूट रहा है, डिसोसिएट कर रहा है 2X में,
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ डेल्टा एन जी जो होगा 2 - 1, दैट इज डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। दो इसके हैं, दो प्रोडक्ट के हैं और एक इसके है, ये गैसियस फेज में। तो 2 - 1 इज 1। नाउ हमें पता है इक्विलिब्रियम पे एक प्रिंसिपल यूज होता है LCP, ली सेटलियर्स प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an increase of pressure shifts reaction towards lesser number of gaseous moles। तो अगर प्रेशर में इंक्रीज करता तो इधर 2 मोल है और इधर 1 मोल है, रिएक्शन बैकवर्ड जाता। क्वेश्चन में डिक्रीज इन प्रेशर, दैट इज डिक्रीज इन प्रेशर विल ऑब्वियसली शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ 2, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो अगर इंक्रीज ऑफ प्रेशर करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर विल बी मोर एंड मोर फॉर्मेशन फॉर द मोल्स ऑफ गैसियस एक्स। दैट इज ऑप्शन ए जो है, दिस इज ट्रू और यू कैन से करेक्ट स्टेटमेंट। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। एग्जामिनर ऑलवेज वांट्स टू चेक योर अवेयरनेस। आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, डायरेक्टली ऑप्शन ए कर दोगे। तो ऑल वन पीस ऑफ एडवाइस इज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल्ली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑब्वियसली ये सही बात है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग X2 से 2x, क्वेश्चन में उन्होंने बोला T0 पे इसके 1 मोल गिवन थे, ये बना नहीं। टी इक्विलिब्रियम पे ये 1 - बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 और बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2। आप क्या देख रहे हो, T0 से T इक्विलिब्रियम तक ये 1 से डिक्रीज कर रहा है। जब ये डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। हमें वैसे भी पता है एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट वी डिफाइन इज QP, एंड जब QP की वैल्यू KP से कम होगी, जब QP की वैल्यू KP से कम होगी तो ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। कब तक, अनटिल और अनलेस QP की वैल्यू KP के बराबर ना हो जाए। और व्हेन दिस वैल्यू इक्वल्स KP देन इक्विलिब्रियम गेट स्टेबलिश्ड, और अगर ये वैल्यू KP को एक्सीड करने लगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। फॉर नाउ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज अबाउट इनिशियल कंडीशन, एंड इनिशियली QP इज ऑब्वियसली लेस देन KP, दैट इज रिएक्शन विल बी इन spontaneous in forward. There is no doubt in this statement. Again, this statement is true or you can say correct, but still this is not our correct option, because question being asked is about incorrect statement. Let's move to option C, and option C is asked, that is beta equilibrium is 0.7. So इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और गिवन था। वन स्टेटमेंट गिवन इन दिस क्वेश्चन वाज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन, एनी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी लाइन वेरी केयरफुल्ली। एंड ऑप्शन सी में इन्होंने बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू के बारे में कमेंट करा, एंड यू नो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिव्स फ्री एनर्जी इज गिवन पॉजिटिव, एंड गिव्स फ्री एनर्जी होता क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी सिंपली -2.303 RT log Kp, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस वैल्यू इज गिवन पॉजिटिव। अब आप ये देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव दिस नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल ये वैल्यू जो होगा ये नेगेटिव होगा, सो दैट इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दैट इज डेल्टा जी को पॉजिटिव होने के लिए आई कैन से Kp को निगेटिव होना होगा, log Kp को निगेटिव होना होगा, और log Kp को निगेटिव होने के लिए Kp की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द थिंग वी कैन डेफिनेटली assume to be true. And now according to the question, if beta equilibrium in the question it is given 0.7, let's check if this is the true case. The expression for Kp we have already found out that 8 beta equilibrium square by 4 minus beta equilibrium. In the above question we had already find out, and in this question 8 according to the given condition put the value 0.7 for beta equilibrium. When you put the value 0.7 it becomes 0.7 square,
4 minus 0.7 square. And when you solve this expression, what you will get, this expression is greater than 1. That is, Kp is greater than 1, which violates our assumption that Kp was less than 1. According to the given question, delta G निगेटिव है, जिसके लिए Kp को 1 से कम होना होगा, और यहाँ Kp 1 से ज़्यादा आ रहा है. मतलब ये है कि हम ये पोस्टुलेट दैट व्हाट वी हैड एज्यूम्ड कि Kp वीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.7 होगी, दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट वन, एंड वी हैव फाइंड आउट द incorrect statement. So beta equilibrium is 0.7. This is definitely a false statement. That is, it is incorrect, but this should be our option. Moving on to next option, D, Kc less than 1. Let's see option D. Given option D, we have already found out that delta Z is positive, and if delta G is positive, which means ln Kp is less than 0, and we already know Kp equals KcRT delta Ng. For this reaction, x2 to 2x delta Ng. Delta Ng means moles of gaseous product minus moles of gaseous reactant. यहाँ 2 मोल है प्रोडक्ट के, 1 मोल है रिएक्टेंट के. दैट इज 2 minus 1 is 1. तो इस केस में जो Kp है और जो Kc है, Kp equals Kc into RT. Putting this value here, what we get, ln Kc इंटू RT, ये वैल्यू लेस देन 0. और आपको पता है लॉग में 2 टर्म अगर प्रोडक्ट में आ रहे हो तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ln Kc प्लस ln RT, इट विल बी लेस देन 0, राइट? एंड दिस बिकम्स ln Kc लेस देन ln 1 by RT, ln 1 by RT, which follows Kc is less than 1 by RT. Now put values of R and T given in question. Moving on to question, the value of R given is, let's see what is the value of R given, 0.083 and T is 298, 0.083 and 298. So when we put this value, Kc is less than 1 by, you can say 0.083 for R and 298 is the temperature. When you will calculate this value will definitely come out to be less than 1, that is Kc less than 1. So we definitely can comment Kc is less than 1. That is, again, Kc less than 1, this is a correct or true statement. So according to this question, you needed to find the incorrect statement, and the incorrect statement is only option C. Hope this question adds some value to your education. Thanks for watching.